Hi, guys, and welcome back to the channel of The Dissected Truth. And we are starting with fertilization today. Last time हमने एम्ब्रियोलॉजी एज एन इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बारे में पढ़ा था, गेमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, एंडोमेट्रियम के बारे में भी पढ़ा। So we are all done with the introduction. Now we are moving on to fertilization. सो फर्टिलाइजेशन जैसे क्लास 12th में किया था, है ना, 5 पॉइंट्स में खत्म, इतना नहीं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन is the process by which two gametes, that are the two specialized mature haploid germ cells, one ovum, one spermatozoa, they come together, they fuse with each other, they lead to formation of a diploid cell known as the zygote. ठीक है, चले आगे. सो व्हाट डू वी हैव नाउ? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे सीक्वेंस वाइज ऐसा बहुत सारे प्रोसेसेस होते. इट इज नॉट समथिंग जो बस ऐसे दो गैमीट्स आए, मिल गए, हो गया, चलो घर चलते हैं, नहीं है. So fertilization is a sequence of coordinated molecular events involving the merging of sperms with eggs. Then जब sperm और ovum merge करेगा, their pronuclei will come and they will intermingle with each other. So maternal and paternal chromosomes एक दूसरे के साथ merge करेंगे, and that is fertilization. Where does fertilization takes place? It takes place in the ampulla, or you can say lateral one-third of the uterine tube, means ampulla and isthmus. ठीक है? So this is the site of fertilization. And what is the time of fertilization? क्योंकि ovum remains alive for a time period of 24 to 48 hours after ovulation. तो फर्टिलाइजेशन होना भी इसी पीरियड में चाहिए. सो फर्टिलाइजेशन शुड टेक प्लेस 24 within 24 to 48 hours of ovulation. ठीक है, स्टार्ट करें, चलें आगे. तो क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले वी हैव अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट्स. अप्रोक्सीमेशन मतलब ओवम रिलीज होगा, स्पर्म आएगा, दे बोथ विल कम टुगेदर, दे विल फ्यूज. दैट इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट्स. So first of all, if we are talking about ovum, तो ovum के साथ क्या होता है? देखो, this is the female reproductive system, you know this. इसमें uterine tube है, ovary है, and this uterine tube we have these parts. एक तो ये funnel shaped part होता है, infundibulum. Then we have these finger like things known as fimbriae. Then we have a wide part called ampulla and a narrow part called isthmus. तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो दिस इनफंडिबुलम एंड फिम्ब्रिए दे कम इन क्लोज अप्रोक्सिमिटी ऑफ द ओवरी. दिस इज द मेन पॉइंट. ये पास में आ जाता है इसके, बिल्कुल ऐसे इसको कवर कर लेते, बिकॉज द ओवम विल बी रिलीज्ड इन द स्पेस. ओवम या ओवरी का यूट्राइन ट्यूब से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है. So it is something like there is ovary and ovary के around ये fimbriae present है. There is a space. So in that space itself, ovum will be released. So जब ovulation होता है तो ओविडक्ट का एंडिंग पॉइंट क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है ओवरी के. And the finger like things, the fimbriae, they start to create a suction, जिसकी वजह से ओवम इज स्वीप्ड एंड इट इज कलेक्टेड बाय द यूटराइन ट्यूब, और यू कैन से फेलोपियन ट्यूब. देन फेलोपियन ट्यूब में दो चीजें होती हैं. फर्स्ट थिंग,
यू शुड नो हिस्टोलॉजिकली फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। तो जो सीलिया हैं वो मूव कर रहे हैं टू लाइक पुश द ओवम फॉरवर्ड। Other than that, there is this peristaltic movement of uterine tube because of the musculature of the uterine tube. तो जो यूटराइन ट्यूब है उसकी जो मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड द मूवमेंट दैट इज कॉज्ड इज नोन एज पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। एक वेव लाइक मूवमेंट बनती है विच विल लीड टू द लाइक इट विल पुश द ओवम फर्दर, या फिर वो ओवम को आगे 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 पहुंचाती। So there are the cilia as well as the peristaltic waves जो ओवम को आगे आगे भेज रही। Got it? Then we have to talk about the sperm also. But एक चीज याद रखना that there is a sperm selection process. यहां से जब वजाइना के थ्रू स्पर्म्स एंटर करते हैं, there are a million of sperms, 200 to 500 million sperms that are deposited here, out of which only 300 to 500 reaches the ampulla. तो बीच में क्या हुआ बेचारों के साथ? Most of these sperms are killed, they die either because उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, बिकॉज वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अदर देन दैट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बिकॉज इट कंसिडर्स कि स्पर्म बाहर से आए हैं, दैट मीन्स स्पर्म्स आर फॉरेन बॉडीज, सो फीमेल immune system starts to attack the sperms. तुम समझ रहे हो? फीमेल की बॉडी को लगता है स्पर्म्स तो बाहर से कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट है, सो वी हैव टू किल देम। तो फीमेल का इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? स्पर्म्स को मार रहा है। तुम समझ रहे हो? एंड द अदर थिंग इज, यहां पे दो फेलोपियन ट्यूब्स है, ओवम सिर्फ एक ही साइड पे प्रेजेंट है, तो ओनली वन ऑफ द साइड पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है, बट स्पर्म हैव टू गो बोथ द साइड्स। The sperms, they divide, they move to both the fallopian tubes. तो जो आते हैं मिलियंस की नंबर में, आधे मर जाते हैं, आधों का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, वगैरह वगैरह, दे ऑल डाई। सो देर how many reach the ampulla? Only 300 to 500 can reach the ampulla. समझ रहे हो? So that means there is this identification and selection process of fittest spermatozoa. भाई हम तो सबसे अच्छा स्पर्मेटोजोआ ही प्रेफर करेंगे फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि ऑफस्प्रिंग को हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल मिले। सो स्पर्म सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप, आउटर अपीयरेंस, कौन से स्पर्म का सबसे अच्छा है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जो सबसे पहले पहुंचेगा, एंड जीनोमिक एंड मॉलिक्यूलर इंटीग्रिटी, जिसके जेनेटिक्स अच्छे हैं वो पहुंच जाएगा और वो ही फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगा। गॉट इट? चलेगा? So there is one more thing written here. Sperm selection process is entirely controlled by female genital tract. So female is in control, और ये होता है, बायोलॉजी कभी भी पढ़ते हैं, फीमेल डोमिनेटेड होती है बायोलॉजी। यू ऑलवेज सी कि बायोलॉजी में फीमेल गैमीट्स बड़े होते हैं, फीमेल को थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा है बायोलॉजी में, कहीं तो है। चलो ठीक है, समझ गए? तो स्पर्म सिलेक्शन इज द entirely, it is a process which is entirely controlled by female genital tract. ठीक है? So now we have to talk about sperms. Sperms also have to reach the female genital tract. तो सबसे पहले कौन है स्पर्म के हेल्पर्स, कौन उसको वहां तक पहुंचा रहे हैं? तो सबसे पहले सेमिनल फ्लूइड। सो वी हैव 3 ग्लैंड्स जिनमें से कुछ कुछ सिक्रीशंस आती हैं, out of which most of the secretion comes from seminal vesicle.
60%. Then 25% secretion comes from prostate gland, and only 5% secretion comes from bulbourethral gland, जो कि lubrication में help करता है at the time of sexual intercourse, right? And other things that are present in this seminal fluid are, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं ना कैसे स्पर्म को हेल्प करती हैं. जस्ट लाइक वी हैव फ्रक्टोज, जो कि एनर्जी सोर्स है स्पर्म के लिए. वी हैव सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज, स्पर्मिन फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिनोलिसिस. तो कहाँ कहाँ कैसा कैसा हेल्प होता है, तो पहले मैं ये बताती हूँ. देखो, व्हेन सीमेन इज रिलीज्ड, व्हेन सीमेन इज इजैक्युलेटेड इनसाइड द फीमेल बॉडी, इट कोएगुलेट्स. तुम समझ रहे हो? जो सीमेन है, इट विल कोएगुलेट, वो जम जाएगा. क्यों? ताकि जस्ट आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स द सीमेन इज नॉट कमिंग बैक, बाहर ना आ जाए आउटसाइड. दैट्स व्हाई इट कोएगुलेट्स, इट फॉर्म्स द कोएगुलम. तो वो जो सीमेन कोएगुलम होता है, थोड़ी देर बाद फिर उसको डिसॉल्व करना पड़ता है, ताकि फिर उसमें से स्पर्म्स रिलीज होके मूवमेंट करें, ऊपर तक पहुंचे, यूट्रस में एंटर करें. So this enzymatic degradation of semen coagulum is caused by the secretions of seminal vesicle and prostate specific antigen. ठीक है? तो sperm coagulum का enzymatic degradation हुआ, उसमें से sperms रिलीज हुए, sperms will move forward. ठीक है? Also, when ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तो जो सर्वाइकल म्यूकस है, द म्यूकस दैट इज रिलीज्ड हियर इन द सर्विक्स, वो सर्वाइकल म्यूकस जो है ना, तो बहुत थिन हो जाता है. इट बिकम्स वेरी लेस थिक. इट इंक्रीजेज इन अमाउंट फॉर इजियर पैसेज ऑफ स्पर्म्स. अब उनको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा ना, तो स्पर्म्स आगे नहीं जा पाएंगे. So this is a very nice property of cervical mucus, which takes place at the time of ovulation. Cervical mucus, it is increased in amounts and it becomes less thick, which allows easier transport of sperms. Other than that, there are some prostaglandins also present in sperms, semen. So that prostaglandin stimulates uterine motility. देखो, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे, ताकि स्पर्म्स पुश हो जाएं, थोड़ा उनको एक पुश मिले ऊपर जाने के लिए. Got it? This will assist the passage of sperms. चलेगा? चले आगे. So now the ovulated follicles, जो सेकेंडरी oocyte है, वो क्या करता है? एक फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम है स्पर्म कीमोट्रॉफिक फैक्टर, जो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. एंड ये जो फैक्टर है ना, इसको भी जो स्पर्म्स रिस्पॉन्ड करेंगे ना, वो वही स्पर्म्स होंगे जो कैपेसिटेटेड स्पर्म्स होंगे. दैट मीन्स देयर इज वन मोर थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स. कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स का मतलब क्या है? देखो, स्पर्म्स अभी फर्टिलाइजेशन करने के लायक नहीं है, उनको फर्टिलाइजेशन करने के लायक बनाना पड़ेगा. एंड हाउ विल दे बिकम एबल टू फर्टिलाइज? दैट इज कैपेसिटेशन. अभी उसकी भी बात कर. बट जो ये फैक्टर है, इसको सिर्फ वही स्पर्म्स रिस्पॉन्ड कर सकते हैं विच आर कैपेसिटेटेड स्पर्म्स. ठीक है? चले आगे, कैपेसिटेशन पढ़े. So now we have to talk about capacitation of sperms. Capacitation of sperms will take 5 to 7 hours to complete. और इसमें होता क्या है, मैं तुम्हें बताती हूँ. देखो, जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जो एक्रोसोम को कवर करती है मेनली, उस मेम्ब्रेन में बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते. क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते. तो
उन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन्स का रीअरेंजमेंट हो जाए, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा ग्लाइकोप्रोटीन्स अपीयर हो जाए, या कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हट जाए। तुम समझ रहे हो, कुछ तो रीअरेंजमेंट होने वाला है उस लेयर का, रीअरेंजमेंट, रीअपियरेंस, या कुछ ऐसा अपीयर हो जाना या चले जाना, कुछ कुछ वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन्स के चेंजेस होंगे। दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। समझ रहे हो? तो देखो क्या लिखा है, ग्लाइकोप्रोटीन कोट and seminal plasma proteins on the plasma membrane of the acrosomal region. Either they redistribute, they modify, either they are removed or they appear. Like कुछ नए आ गए, कुछ गायब हो गए, कुछ रीअपियर, कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ की मॉडिफिकेशन हो गई। दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। समझ गए? चलेगा? बट कैपेसिटेशन होने से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं नेम्ड एज डी कैपेसिटेटिंग फैक्टर्स, इनको भी हटाना पड़ता है, और ये हटाए जाते हैं बाय वेजाइनल सिक्रीशंस। सो दीज factors, these proteins are present on the cell membrane of sperm. तो इनको हटाना पड़ता है, which are removed by vaginal secretions, and then capacitation starts. ठीक है? अदर देन दैट, कैपेसिटेशन में कुछ फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है? अगेन, you don't need to remember all of these factors, you can just remember one or two जिससे तुम लिख सकते हो पेपर में। ठीक है? जैसे CD52, ये डी कैपेसिटेटिंग फैक्टर है, इसको हटाना पड़ेगा। कौन हटाएगा? वजाइनल सेक्रेशंस। PH20 और स्पैम 1, इट बिकम्स एक्सपोज्ड, मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे एक्सपोज हो जाए। व्हाट डज इट डू? इट हेल्प्स इन कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेशन। Other than that, we have glycosyl transferase. What it does? It is unmasked post removal of inhibitory coat and it binds to ZP3. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. This is very important. Galactosyl transferase. This is important. ये मेन चीज है. ये बाइंड करेगा जेड जोना पेलुसिडा में, कुछ रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन्स है, वहां पे बाइंड करेगा ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? ऐसे ही एक और है बीटा डिफेंसिन 126, ये भी हटाया जाता है, रिमूव होता है. क्यों? क्योंकि ये डीकैपेसिटेटिंग फैक्टर होगा. ठीक है? चलें आगे. अदर देन दिस यू कैन सी सम सरफेस शुगर्स और ऑल्सो प्रेजेंट. सैलिसिलिक एसिड रेसिड्यूज, ये क्या करती हैं? ये कम हो जाती हैं. इससे मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी. लेक्टिन बाइंडिंग साइट्स, these are important because they recognize, like they are reorganized to allow ZP recognition. मतलब ये ZP ज़ोना पेलुसिडा रिकॉग्निशन में हेल्प करेंगी. दैट्स व्हाई इट बिकम्स रीऑर्गेनाइज्ड. तो इसका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसका ये कम हो गए, हटा दिया गया इनको. तो तुम समझ रहे हो, यही है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, शुगर्स, जिनका कुछ रीअरेंजमेंट, रिमूवल, रीअपियरेंस, कुछ 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 होता है. And that is capacitation of sperms. And only capacitated sperms can pass through corona radiata and undergo acrosomal reactions. समझ रहे हो? Acrosomal reactions तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक कैपेसिटेशन नहीं हुआ है. Is it good? Now, other than capacitation, और भी एक चीज होती है, पता है क्या? जो टेल वाला पोर्शन है ना स्पर्म का, वहां पे कुछ कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम है कैट स्पर्स. कैट स्पर्स. तो वो जो टेल वाले रीजन है उसमें वो कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम एकदम से अंदर आता है. सडन इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम विच लीड्स टू हाइपर एक्टिव रिएक्शन, एंड टेल जो है वो बहुत विगरसली फिर मूव करने लगेगी, एंड इट विल बेंड मोर फोर्सफुली, और बहुत फास्ट मूवमेंट होने लगेगा स्पर्म को.
सो स्पर्म मूवमेंट के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेशन होना चाहिए, देन ओनली इट विल मूव फॉरवर्ड एंड फिर वो कोरोना रेडिएटर तक पहुंचेगा, फिर जोना पेलुसिडा से रिएक्ट करेगा एंड देन इट विल एंटर द ओवम। बताओ, समझ में आया? बिकॉज नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पेपर्स में आता है। Like they ask you to describe the phases of fertilization. So what are the phases of fertilization? सबसे पहले जब हम ओवम तक पहुंचते हैं, सबसे बाहर एक लेयर होती है कोरोना रेडिएटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पेनिट्रेट, द स्पर्म हैव टू पेनिट्रेट द कोरोना रेडिएटा. व्हाट नेक्स्ट? दूसरे नंबर पे वी हैव टू पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा, ठीक है, वहां पे कुछ एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगे जोना पेलुसिडा पे. वो बाइंड करेगा स्पर्म एंड देन इट विल मूव फॉरवर्ड. बाइंडिंग होगी जोना पेलुसिडा से, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, देन एक्रोसोमल रिएक्टेड, जिसका एक्रोसोम खत्म हो गया वो पेनिट्रेट करके अंदर चले जाएंगे स्पर्म्स. ठीक है. एंड लास्टली व्हाट विल हैपन? कोरोना रेडिएटा से आगे आ गए, जोना पेलुसिडा से आगे आ गए, अब आप पहुंच गए सीधा ओवम की मेम्ब्रेन पे. सो द ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बाइंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म. दोनों का एक कनेक्शन बनेगा एंड स्पर्म का न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सब अंदर साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में पहुंच जाए. So these are the three phases we have to talk about, and these are very important phases. So let us start. तो सबसे पहले आ गए हम फेज 1 पे, जिसमें एंजाइम्स फ्रॉम द स्पर्म हेड. कौन से एंजाइम्स? सबसे पहले वी हैव हाइल्यूरोनिडेज. ये क्या करेगा? जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स है ना, कोरोना रेडिएटा, उन सेल्स, जो सेल्स वो एक साथ जुड़े हुए थे, उनके बीच में कुछ सीमेंट होगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा ये. तो कोरोना रेडिएटा के बीच में से जगह बन जाएगी एंड द स्पर्म कैन रीच जोना पेलुसिडा. तो सबसे पहले क्या करता है स्पर्म? हेड में कुछ एंजाइम्स हैं, एक्रोसोमल एंजाइम्स लाइक हाइल्यूरोनिडेज. ये इंटरसेल्यूलर सीमेंट को तोड़ देता है. फॉलिकल सेल्स जो है कोरोना रेडिएटा वाले सेल्स के इंटरसेल्यूलर सीमेंट को तोड़ता है, आगे बढ़ता है. ठीक है. एंड देयर इज अ प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है स्पर्म के, PH20. इसी से हाइल्यूरोनिडेज एक्टिविटी आती है, मतलब इसी से हाइल्यूरोनिडेज काम करता है, इसकी वजह से. ठीक है. तो एक तो एंजाइम है जो उसके सीमेंट को तोड़ रहा है, स्पर्म आगे निकल रहा है. दूसरा, क्योंकि स्पर्म की टेल मूव कर रही है तो वो भी उसको आगे जाने के लिए फोर्स कर रही है. सो द सेकेंड थिंग इज द फ्लैजिला, द टेल also aids in corona radiata penetration. ठीक है, चलेगा. And the other thing is increase in calcium and bicarbonate ions causes membrane fusion at certain points. कुछ कुछ जगह पे membrane का fusion भी होता है. ठीक है, चले आगे. तो देखो जरा यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन देख लो कैसे होता है. एक्रोसोम पे ये जो मेम्ब्रेन है, वी हैव, ठीक है, ये पहला डायग्राम है, पहले इसको देखो. तुम देख सकते हो एक्रोसोम की यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है, एक है इनर मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ कुछ एंजाइम्स भरे हुए हैं एंड आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स हैं जिसके थ्रू ये एंजाइम्स बाहर निकलेंगे. दीज आर द इमर्जिंग एक्रोसोमल कंटेंट्स. ठीक है. ये नेक वाला रीजन है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और एक डिस्टल सेंट्रियोल है, जो कि मैंने बोला था एक एक्सियल फिलामेंट बनाएगा गोल सा. एंड इसी एक्सियल फिलामेंट के अराउंड यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडल पीस में, एंड दिस एक्सियल फिलामेंट विल कंटिन्यू इन द टेल रीजन. ठीक है. बाकी यहाँ पे हम
मेनली एक्रोसोमल रिएक्शन देख रहे हैं। तो तुम देखो भाई, यहाँ पे वो पूरा एक्रोसोम उसमें इंटैक्ट था, इसमें एक्रोसोम का रिएक्शन हो रहा है, एंड नाउ इट बिकेम एक्रोसोमल रिएक्टेड स्पर्म, जिसका एक्रोसोम खत्म हो गया है। देख रहे हो? देखो भाई, डन। तो वो जो सारे एंजाइम्स थे वो सब रिएक्ट विएक्ट कर गए और ये बना लास्ट में एक्रोसोमल रिएक्टेड स्पर्म। समझ में आया? एक्रोसोमल रिएक्शन इज डन, समझ में आता है? ठीक है। तो देखो और क्या है इसमें, कोरोना रेडिएटा से आप आगे पहुंचे, आप पहुंच गए जोना पेलुसिडा में। सो देर आर सम जोना प्रोटीन्स we have three main glycoproteins in zona pellucida: ZP1, ZP2 and ZP3. ZP4 भी होता है वैसे, but right now we have to talk about the main three glycoproteins: ZP1, ZP2, ZP3, and there is one more ZP4. तो यहाँ पे अभी जो एक्रोसोमल रिएक्शन होने वाले हैं ना, दे विल बी इंड्यूस्ड बाय जोना पेलुसिडा और जोना प्रोटीन्स। Acrosomal reactions are induced by zona proteins। और एक्रोसोमल रिएक्शन में यानी एक्रोसोम में कौन से एंजाइम्स हैं? वी हैव प्रोटीएस, एस्ट्रेस, एक्रोसिन, a serine protease, and neuraminidase. These are the four enzymes that are important and are present in acrosome, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा का लिसिस हो जाएगा, जोना पेलुसिडा टूट जाएगी या पेनिट्रेट करके जो है स्पर्म जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा। देखो जरा यहाँ, देख रहे हो? ये एक्रोसोम है, इंटैक्ट है। ठीक है, ये तुम्हारे ये है जोना पेलुसिडा वाली लेयर। तो यहाँ पे ये सारे एंजाइम्स निकलने लगे, एक्रोसोम का रिएक्शन होने लगा, it causes the lysis of zona pellucida। ठीक है, and that's how there is a space created so that sperm can enter। फिर बाद में क्या होगा? कोरोना रेडिएटर से हम आगे आ गए, जोना पेलुसिडा से भी हम आगे आ गए। तो ये जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो जाएगा। डू यू गेट दिस? और उसके बाद क्या होगा? स्पर्म वहीं पे, लाइक बॉडी ऑफ द स्पर्म वहीं रह जाएगा, इसका न्यूक्लियस और वैसे मिडल पीस का जो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी यहाँ एंटर करता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट टेकन फ्रॉम द स्पर्म, राइट? ठीक है, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मैटरनल सेल से आता है, पैटर्नल सेल से नहीं आता। आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू व्हाई। ठीक है, तो देखो फेज वन हमारा कंप्लीट हुआ, हम आ गए यहाँ फेज टू पे, जिसमें मैंने बोला जोना पेलुसिडा में कुछ कुछ रिएक्शंस होंगे। क्या क्या? सबसे पहले स्पर्म लूजली एसोसिएट होता है जोना पेलुसिडा के साथ, इट जस्ट कम्स एंड इट अटैचेस। देन जोना पेलुसिडा के जो प्रोटीन्स है ना, ये बाइंड करते हैं स्पर्म के साथ। So that means the second step is binding, strong attachment of the sperm with zona pellucida proteins. And third thing that we have is penetration of zona pellucida by the sperm। पूरा sperm ऐसे अंदर penetrate कर जाएगा एंड फिर sperm की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मर्ज कर जाएगी। वो थर्ड स्टेप, फेज थ्री ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट? अभी फेज टू चल रहा है। तो फेज टू में जिसमें हमें जोना पेलुसिडा के साथ रिएक्शन करवाना है, एक्रोसोमल रिएक्शन, तो उसमें आता है पहले लूजली अटैचमेंट, देन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड देन पेनिट्रेशन। ठीक है, तो पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद रखनी है, पता है, बहुत सारे स्पीशीज हैं अर्थ,
बट स्टिल दो स्पीशीज आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग विद ईच अदर। ऐसा तो नहीं है ना डॉग कैट के साथ रिप्रोड्यूस करने निकल गए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एनवायरमेंट के, नेचर के अपने बैरियर्स हैं। नेचर इंश्योर्स इंटीग्रिटी ऑफ द स्पीशीज। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर ये है कि जो जोना पेलुसिडा है ना, वो स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग करता है। मतलब एक अपनी ही स्पीशीज के स्पर्म के साथ जोना पेलुसिडा बाइंड करेगा। तुम समझ रहे हो? तो जो बाहर वाला गेट है वही मेन गेट है, जिसको एंटर करने के लिए अपनी ही स्पीशीज का होना बहुत जरूरी है। ओवम तक पहुंच जाना, oocyte की मेम्ब्रेन, oocyte की मेम्ब्रेन कोई स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है। oocyte की मेम्ब्रेन स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है। जोना पेलुसिडा है मेन गेट। भाई मेन गेट से अंदर कौन आएगा तुम्हारे घर में? इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, अपना होगा, तब वही तो आएगा ना। जो अपना है, अपनी स्पीशीज का है, वो ही जोना पेलुसिडा से अंदर आ सकता। सो दैट मीन्स जोना बाइंडिंग इज स्पीशीज स्पेसिफिक। और जोना पेलुसिडा में तीन मेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, यू कैन सी हियर। वी हैव ZP1, 2 एंड 3। एंड तुम देख सकते हो ZP2 एंड ZP3, ये लॉन्गिट्यूडनली फिलामेंट्स की तरह अरेंज्ड होते हैं। एंड दीज फिलामेंट्स ऑफ ZP2 एंड 3 आर कनेक्टेड बाय ZP1। तो देखो सिंपल लिखा है कि रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं ZP2 ZP3 की, जो फिलामेंट्स फॉर्म करती हैं, एंड दीज आर बाउंड टुगेदर बाय ZP1। अब मैंने ऊपर एक चीज बताई थी जिसमें मैंने एक नाम लिया था गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, फिर दिखा देती हूँ। यहाँ पे था गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, जो कि स्पर्म के ग्लाइकोप्रोटीन में था। ठीक है, यही गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज अब यहाँ पे बाइंड करने वाला है। सो लुक एट दिस। स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। ड्यूरिंग कैपेसिटेशन द ग्लाइकोप्रोटीन ओवर दिस एंजाइम्स आर रिमूव। मतलब इस ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज को जिसने भी कवर किया हुआ था उसको हटा दिया गया है। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एक्सपोज हो गया है। नाउ दिस ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज विल बाइंड द टू ZP3। सो इट विल बाइंड टू द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ ZP3, क्योंकि ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब उसमें एक कार्बोहाइड्रेट वाला कंपोनेंट है और एक प्रोटीन वाला कंपोनेंट है। और इसको किससे जुड़ना है? इसको जुड़ना है कार्बोहाइड्रेट वाले कंपोनेंट के साथ। सो ग्लाइकोसिल, sorry, galactosyl transferase has to bind with the carbohydrate of ZP3। ठीक है। ऑल्सो ये भी लिखा होता है गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज बाइंड्स टू इट्स सबस्ट्रेट। वहीं पे जोना पेलुसिडा में ही उसके सबस्ट्रेट्स भी प्रेजेंट हैं, यूडीपी गैल गैल एंड ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स। क्या है ये? वही कार्बोहाइड्रेट्स के नाम है ये। देख रहे हो? यही जो कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात कर रही हूँ यही है वो। ये नाम है यूडीपी गैल एंड ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स, इससे बाइंड करा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? वो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो गई जोना पेलुसिडा के साथ। फिर क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि अब एक्रोसोमल रिएक्शन होने हैं, मतलब ZP3 से एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म ने ही बाइंड किया होगा। भाई जिसका एक्रोसोम है वही तो बाइंड करेगा ना, फिर उसी ने तो करना है एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होंगे, जोना पेलुसिडा पेनिट्रेट कर, डीजनरेट मतलब वहां से हटेगी, लाइसिस होगा उसका। देन देर इज अनदर ग्लाइकोप्रोटीन ZP2,
तो जिनका एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया है, अब अंदर जा रहे हैं ना वो, देखो ये बाहर बाहर था ZP3, ऑब्वियसली इट हैज टू बाइंड विद एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म। फिर जैसे इसको पेनिट्रेट हमने किया अंदर की तरफ, यहाँ ZP2 प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी है खैर, बट जो ZP2 है इट विल बाइंड टू एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म, क्योंकि भाई अब एक्रोसोमल रिएक्शन तो हो गया ना, अब आ रहा है अंदर स्पर्म, अब ZP2 उससे बाइंड करेगा। समझ रहे हो? अब ZP2 इससे बाइंड करेगा एंड ZP2 विल पुल इट इनसाइड, मतलब उसको और अंदर की तरफ भेजेगा, एंड इट एनेबल द स्पर्म टू रीच पेरीविटलाइन स्पेस, जो कि जोना पेलुसिडा के अंदर की तरफ ही होती है, एक स्पेस नोन एज पेरीविटलाइन स्पेस। और उसके बाद तो विटलाइन मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम आ जाएगी। ठीक है, तो जो स्पेस बना है यहाँ एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन की वजह से, उसी स्पेस में स्पर्म एंटर करता है, और जैसे ही स्पर्म एंटर करता है फिर मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है, वो ओवम की मेम्ब्रेन तक, वो थर्ड फेज आ जाएगा, जिसमें हमें क्या करना है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म विल मर्ज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, है ना? क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो भाई। Once the acrosome reaction occurs, sperm loses the acrosomal cap, obviously। तो अब जब उसका एक्रोसोम ही नहीं बचा है, तो अब वो ZP3 से तो बाइंड करेगा नहीं, और ZP3 भी तब तक मॉडिफाई हो गए या शेड हो गए, ZP3 आर गॉन। ठीक है, तो याद रखना ZP3 बाइंड्स टू एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म, ZP2 बाइंड्स टू एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म्स। ठीक है, चलें आगे। ऑल्सो देर आर सम प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, क्योंकि अब आउटर वाली मेम्ब्रेन तो गई, एक्रोसोम का कंटेंट भी गया, एंजाइम्स भी गए। सो नाउ वी आर एट दिस स्टेज, दिस वन। So now there are some proteins present on the inner membrane, inner acrosomal membrane, and these are SPACA1, sperm acrosome associated protein 1, which binds to the membrane of ovum, SPAM1, sperm adhesion molecule 1, and ARSA, aryl sulfatase A. These two will bind to ZP2। ठीक है, तो अब जोना रिएक्शन भी हो गया, एंड नाउ वी हैव रीच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म विल फ्यूज विद मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ठीक है, अब जब स्पर्म आ चुका है तो अब ओवम में भी कुछ कुछ चीजें होने वाली हैं। क्या क्या? पहला, कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन। तो अभी कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन और होने हैं, जो ओवम की तरफ से इनिशिएट होंगे, एंड दैट इज कि एक तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आएंगे, ठीक है, और जोना रिएक्शन, जिसमें जोना पेलुसिडा विल हार्डन टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। फाइन, तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, तीन चीजें, कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन। अदर देन दैट, क्योंकि स्पर्म आ गए तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन रिज्यूम हो जाएगी, उसकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन खत्म हो जाएगी, एंड मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द एग, उसमें मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट आर दीज थ्री रिएक्शंस, एक एक करके मैं बताती हूँ। दोनों ही, जो ये कॉर्टिकल और जोना रिएक्शन है ना, बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो देखो, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, दो फेज आते हैं इसमें, एक होता है फास्ट ब्लॉक फेज, एक होता है स्लो ब्लॉक फेज। स्लो ब्लॉक फेज ऑब्वियसली उसमें टाइम लग रहा होगा, तभी एक पहले एक फास्ट ब्लॉक फेज आया जिसमें कुछ फास्ट कुछ 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 होने वाला है।
तो सबसे पहले जो फास्ट ब्लॉक फेज होता है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का, एग की सेल मेम्ब्रेन। समझ रहे हो? ये थोड़े टाइम के लिए पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट कर सकता है, मतलब दूसरे स्पर्म्स को, ओवम को पेनिट्रेट करने नहीं देगा। यह है फास्ट ब्लॉक फेज। फिर आता है स्लो ब्लॉक फेज, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, देखो यहां ना, ये ओवम है, ये ओवम की मेम्ब्रेन, ठीक है। ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। और इन्हीं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में ना कुछ कुछ एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। क्या भरे होते हैं? कुछ कुछ एंजाइम्स भरे हुए। सो क्या होता है देखो, जैसे ही एग और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करेगी ना, दिस विल बी अ ट्रिगर फॉर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम कॉर्टिकल, SER, कॉर्टिकल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयंस एकदम से रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम वेव आएगी, विच विल क्रॉस द होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम इन 20 सेकेंड्स। क्या आएगी? एक कैल्शियम वेव, कैल्शियम फैल जाएगा पूरे में, ठीक है। अब इस कैल्शियम फैलने की वजह से बहुत सारे ऐसे कैल्शियम 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 फैल गए, इसकी वजह से जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम के साथ फ्यूज कर जाएंगे और अपना सारा कंटेंट बाहर पेरीविटलाइन स्पेस में रिलीज कर देंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक स्पेस है जिसको पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्या किया इसने? अपने सारे कंटेंट्स ऐसे बाहर बाहर घेर दिए। अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या कंटेंट्स थे और कैसे कैसे वो काम करेंगे। सो वी हैव प्रोटीएस, पर ऑक्सीडेज एंड ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स। ये तीन चीजें हैं जो यहाँ पे कुछ कुछ करने वाली हैं, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाएगी ऑब्वियसली। सो फर्स्ट वी हैव प्रोटीएस विच क्लिप्स द पेरीविटलाइन टेदर प्रोटीन्स, जो क्लिप करता है या उसको रोक देता है, बाइंड कर देता है स्पर्म प्रोटीन्स बाउंड टू जोना पेलोसिडा। जो वहां पे प्रोटीन्स होते हैं उसको क्लिप कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है काइंड ऑफ, ठीक है। क्लिप करना मतलब वहां से रोक देना। देन वी हैव peroxidases। ये क्या करता है? विटलाइन मेम्ब्रेन या विटलाइन एनवेलप को हार्ड कर देता है पूरा, बिकम्स हार्ड, सो दैट नो अदर स्पर्म कैन पेनिट्रेट इट। एंड लास्टली वी हैव ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स, जो यहाँ पे रिलीज होंगे, जिसकी वजह से वाटर यहाँ पे पेरीविटलाइन स्पेस में अट्रैक्ट होगा। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसे ये पूरा बड़ा हो गया ना, पानी भर गया है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म हाइलीन लेयर, विच अगेन विल प्रिवेंट द स्पर्म, एनी अदर स्पर्म टू पेनिट्रेट। क्योंकि अब एक स्पर्म पेनिट्रेट कर चुका है, एक स्पर्म पहुंच चुका है, तब ये रिएक्शंस हो रहे हैं ताकि कोई और स्पर्म ना आ जाए, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ठीक है। चलें आगे। सो दीज वर कॉर्टिकल रिएक्शंस। एंड देन वी हैव जोना रिएक्शंस, जिसमें जोना पेलुसिडा भी हार्ड हो जाएगी। एंड व्हाट आर दीज रिएक्शंस? क्या होता है एग्जैक्टली exactly, मैं बताती हूँ। देर इज समथिंग नोन एज ओवास्टैटिन। क्या होता है ओवास्टैटिन? देखो, तुम्हें याद है ZP3 ZP2 थे। ZP3 से पहले ही एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म बाइंड हुआ था, और जैसे ही वो आगे निकला था फिर ZP3 ऑल्टर हो गए थे, शेड हो गए थे। और अब जो स्पर्म है एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म, वो ZP2 से जुड़ा हो। अब ये ZP2 भी हट जाएंगे, क्लीव हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ना अब जोना पेलुसिडा में ZP3 बचा, ना ZP2 बचा। अब कौन सा स्पर्म है जो अंदर आ सकता है, बताओ जरा। तुम समझ रहे हो? समझ गए? तो ना ZP2 बचा, ना ZP3 बचा। तो जोना पेलुसिडा को अब कोई भी स्पर्म पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता।
दिस विल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ठीक है। बट अगर सोचो कभी गलती से ये सब काम ना करे और कोई 2 या 3 स्पर्म एक ओवम को फ्यूज कर दें, जिसकी वजह से N+N+N+N ऐसा पॉलीप्लॉइडी आ जाए, तो वो चीज पहले ही उसका जेनेटिक्स जो होगा वो काम नहीं करेगा एंड इट विल बी अबॉर्टेड, द फीटस विल बी अबॉर्टेड। ऐसा पॉलीप्लॉइडी वाला केस हमारे ह्यूमंस में होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज द फीटस अबॉर्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, चलें आगे। सो नाउ वी हैव टू मूव एंड देयर आर मोर थिंग्स जो यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कैल्शियम जो इंक्रीज हुआ था, कैल्शियम की वेव आई थी, उससे मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाता है। बाकी सेल्यूलर रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है ओवम में, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि स्पर्म जो है, ओ सॉरी, एग जो है वो एक्टिवेट हो गया है, मेटाबॉलिकली एक्टिवेट हो गया है और आगे अब प्रोसेस करे। सो दैट वाज फर्टिलाइजेशन का पूरा पूरा अभी तक, बस हम आए हैं वहां तक, अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। देख रहे हो? ठीक है। तो क्या हुआ? मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रियोल लिखना था, सेंट्रियोल लिखना था ना, सेंट्रियोल। न्यूक्लियस सेंट्रियोल, क्योंकि जो सेंट्रियोल है वो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा ना, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन स्पर्म के सेंट्रियोल की वजह से होती है। तो न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, मिडपीस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ एंटर करता है और साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte में आ जाता है। ठीक है। इंटीग्रिन्स ऑन oocyte एंड डिसइंटीग्रिन्स ऑन स्पर्म मीडिएट इनिशियल एडहेशन, ये बात हो रही है दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलने की। तो इंटीग्रिन प्रोटीन्स होते हैं oocyte पे, डिसइंटीग्रिन होते हैं स्पर्म पे, दोनों इंटरैक्ट करते हैं, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ जाती है एक दूसरे के साथ। ठीक है। फिर एडहेशन हो जाती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहीं रह जाती है, न्यूक्लियस अंदर चला जाता है, सेंट्रियोल, मिडपीस सब अंदर चला जाता है। ठीक है। बट मैं ये बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रहा, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ मदर का माइटोकॉन्ड्रिया ही जाइगोट में जाता है, क्योंकि sperm mitochondria lacks protective histones, that means it is unstable and it is prone to oxidative stress। ये खराब है भाई, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकता और अनस्टेबल है। बायो की किताबें कुछ कुछ इशारा कर रही हैं, लोग समझ जाएं तो समझ जाए, समझ। ठीक है। स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया अनस्टेबल है और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोन है, मतलब वो खराब हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैटरनल और पेटर्नल दोनों माइटोकॉन्ड्रिया अगर साथ में होंगे तो किससे ऑर्डर लिया जाए, चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी। समझ रहे हो? ठीक है, चलें आगे। मेन चीज है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रो न्यूक्लियर। प्रो न्यूक्लियर होता है वो न्यूक्लियस का मटेरियल थोड़ा डीकंडेंस हो जाता है। So what is happening? Chromosomal material of sperm and ovum decondense and enlarge. At this stage, the male and female pronuclei are indistinguishable. You cannot tell कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का है। इसी स्टेज पे ध्यान से सुनना प्लीज, दिमाग की खिड़की खोल लें, दरवाजे भी खोल लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं। प्रो न्यूक्लियाई डीकंडेंस हुआ, एनलार्ज हुआ। सोचो डीकंडेंसेशन कब होती है? डीकंडेंसेशन या डीकंडेंस्ड जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। तो मतलब यही डीएनए अभी ही रेप्लिकेट हो जाएगा, अभी के अभी, फ्यूज नहीं हुआ अभी तक, पहले ही रेप्लिकेट कर लिया, जैसे ही फ्यूज होगा वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। इट विल टेक टाइम बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि
फ्यूजन के बाद इसकी रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, फ्यूजन से पहले ही ये रेप्लिकेट कर लिया है। ये मेन बात है कि इसने फ्यूजन करने से पहले ही मेल फीमेल जो प्रोन्यूक्लियाई थे पहले ही इन्होंने अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लिया। फिर ये क्या किए, फिर ये आ गए साथ में, और उसके बाद जब फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगा वो इट विल फॉलो शॉर्टली आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन लीविंग टू सेल्स। तुम समझ रहे हो, पहले डिवाइड कर चुके हैं ये 23 क्रोमोसोम्स का मटेरियल डबल हो चुका है। They come together, they become 46 chromosomes with double material. So now they have to divide. तो दो सेल्स बन जाएंगे जाइगोट, जब डिवाइड करेगा क्लीवेज डिवीजन करेगा तब। कुछ समझे, कुछ तो समझे, बोल दो बोल दो। ठीक है, हो गया, बस, और क्या, डन। ये भी और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सेकेंडरी oocyte इज सस्पेंडेड इन मेटाफेज 2 बिकॉज इट लैक्स अ सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल बेचारा स्पर्म लेकर आएगा तब जाके इसकी मियोसिस 2 भी खत्म होगी, और फिर जाके ये प्रोन्यूक्लियस बनेंगे, प्रोन्यूक्लियस डबल करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, डन। सो आई थिंक दैट्स इट, फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया इन डिटेल, वी आर डन विद फर्टिलाइजेशन। So in next class, we have to talk about the development of the zygote, 2 cell stage, 3 cell stage, and many more. Bye. बहुत हो गया, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। We'll meet again with another lecture in another top with another topic in another lecture. Till then, bye bye.